Hello dear students. Now on the renewable power generation subject, we are on the lecture number 11th of unit 2, which is fundamental of solar photovoltaic conversion. In this particular lecture, we are going to understand what do you mean by the solar photovoltaic system and what is the solar cells and other details related to these things. What do you mean by solar photovoltaic? Photovoltaic, often shortened as PV, gets its name from the process of converting light, that is photon, to electricity, that is voltage, which is called the photovoltaic effect. This particular phenomena was first come in 1954 by scientists at Bell Laboratories, who created a working solar cell made from silicon that generated an electric current when exposed to sunlight. Basically, when light shines on photovoltaic, that is PV cell, it may be reflected, absorbed, or pass right through it. The PV cell is composed of semiconductor material, which combines some properties of metal as well as properties of insulator that make it uniquely capable of converting light into electricity. When light is absorbed by a semiconductor, photons of light can transfer their energy to electrons, allowing the electrons to flow through the material as electric current. This current flows out of the semiconductor to metal contacts and then makes it way out to power. What actually solar voltaic system? It is most useful way of harnessing solar energy is by directly converting into DC electricity. DC stands for direct current by means of solar photovoltaic cells. Energy conversion devices which are used to convert sunlight to electricity by the use of photovoltaic effect are called the solar cells. So now here the definition of solar cells come, that is to convert sunlight to electricity by use of photovoltaic effect. This particular system is called the solar cell. A typical photovoltaic cell consists of semiconductor material. Basically, usually it is of silicon, having a PN junction as shown in figure. It is a PN junction. In figure, it is very clear that it is a schematic of PV cell. N-type and P-type material through which load is connected. Whenever sunlight comes on the cell, the operation is based on intensity of the sunlight. Here the complete working of solar cell is given. Sunlight striking this cell raises the energy level of electrons and frees them from atomic cell. जब सनलाइट स्ट्राइक करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक सेल से फ्री हो जाते हैं. द इलेक्ट्रिक करंट एट द पीएन जंक्शन ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन इनटू एन एन रीजन, और वो फिर एन रीजन में पहुंच जाते हैं. वाइल पॉजिटिव चार्जेस आर ड्रिवन टू द पी रीजन. A metal grid on the surface of the cell collects the electrons, while a metal backplate collects the positive charge. In this particular figure, you are seeing that the solar photovoltaic cell, glass, top surface is the glass, then transparent conductor, then P-type layer, intrinsic layer, then N-type layer, and at the base is of metal. So this is all about the
solar photovoltaic cell. It is a well established proven technology with a substantial international industry network. PV is increasingly from cost effective compared with either extending the electrical grid or using generators in remote locations. कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कि जनरेटर से आ रही है वहाँ नहीं पहुँचा पाते रिमोट लोकेशंस में, वहाँ पर इनका ज़्यादा यूज़ होता है. Solar cells can be manufactured from different semiconductor materials and their combinations. The voltage generated by a solar cell depends on the intensity of the solar radiations and the cell surface area receiving the radiations. The maximum achievable power is about 100 watt per meter square of solar surface area. जो सोलर वोल्टेज जनरेट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन पे बहुत ज़्यादा इसकी डिपेंडेंसी होती है, और जो सेल सरफेस है आपके सेल की सेल की जो सरफेस है उससे कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर आ रहे हैं. तो इसका जो मैक्सिमम अचीवेबल पावर जो है करीब 100 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है. नाउ कम टू द पॉइंट. हम सोलर सेल के बारे में जान चुके हैं. अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स. कितने प्रकार के सोलर सेल्स हो सकते हैं और इस वक्त हैं. मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, amorphous silicon cells, gallium arsenide that is GaSs and copper indium deselenide जिसको हम CID सेल्स बोलते हैं. तो इतने प्रकार के सोलर सेल्स होते हैं. एट प्रेजेंट सिलिकॉन सोलर सेल्स ऑक्युपाई 60% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट. कहने का मतलब ये है कि अभी दुनिया में जितने भी प्रकार के सोलर सेल्स पाए जा रहे हैं उसमें 60% करीब जो है वो सिलिकॉन सोलर सेल्स की ऑक्यूपेंसी है. इतने बड़े मार्केट में 60% जो सेल पाए जा रहे हैं वो सिलिकॉन सोलर सेल्स होते हैं. बेसिक टाइप ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल्स आर, ये अलग अलग प्रकार के जो सिलिकॉन सोलर सेल्स होते हैं उसमें पहले प्रकार का जो होता है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल. उसका अपग्रेड वर्जन आया पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स, एंड देन थर्ड टाइप का जो है थिन फिल्म और एमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल्स. अभी भी मार्केट में पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं. इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि मोनोक्रिस्टलाइन कैसा दिखता है, पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स कैसे दिखते हैं और थिन फिल्म कैसे दिखते हैं. These are the basically 3 types of cells. Now come to the monocrystalline silicon solar cells. These are silicon solar cells of size 10 cm into 10 cm, which produces a voltage of 0.5 volt and power output of 1 watt at a solar radiation intensity of 1000 watt per meter square. यदि 1 मीटर स्क्वायर पर 1000 वॉट इंटेंसिटी सोलर रेडिएशंस पड़ते हैं तो करीब करीब उसका आउटपुट 1 वॉट होता है, और वहाँ पर वोल्टेज 0.5 वोल्ट्स के होता है. द सोलर सेल्स आर फॉर्म्ड इनटू मॉड्यूलस बाय enclosing in an airtight casing with a transparent cover of synthetic glass. Casing मतलब ऊपर का cover, transparent cover of synthetic glass. These modulus possess high efficiency between 15 and 18% and are used in medium and large size plant. 15 से 18% भी ज़्यादा है, करीब करीब ये एफिशिएंसी थ्योरेटिकली तो हम 15 से 18% बोल रहे हैं, लेकिन ये 11 से 12% के आसपास ही आती है. अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स.
The higher efficiency of solar module is around 12 to 14%. इसकी एफिशिएंसी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है और मैक्स टू मैक्स एफिशिएंसी 12 से 14% चली जाती है. थिन फिल्म सोलर सेल्स. द क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स आर labor and energy intensive in manufacturing. The thin film cells are produced from amorphous silicon. It has the capacity to absorb more solar radiations due to irregular atom arrangement. The efficiency is 5 to 8%. These are very cheap to manufacture. Cell efficiency is defined as the ratio of electric power output of the cell or module or array the power content of sunlight over its total exposed area. The maximum theoretical efficiency of solar cell is around 47%. अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी कन्वर्जन. एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट. किसी भी प्रकार के कोई मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं होते. डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है लाइट का इलेक्ट्रिसिटी में. इट कैन फंक्शन unattended for a long time. Low maintenance cost. Maintenance cost बिल्कुल ना के बराबर है. No environmental pollution. Pollution का कोई से मतलब ही नहीं है. Very long life, around 30 to 35 years. Highly reliable, बहुत reliable है. सोलर एनर्जी इज फ्री एंड नो फ्यूल रिक्वायर्ड. सबसे जो मेन बात है वो यहाँ पर बताई गई है. इट इज टोटली फ्री और अथाह सोलर एनर्जी सूर्य की रोशनी के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है. इट कैन बी स्टार्टेड इजीली एज नो स्टार्टिंग टाइम इज इन्वॉल्व. स्टार्टिंग का टाइम का कोई सवाल ही नहीं उठता. एज लॉन्ग एज द सनलाइट कम्स टू द solar cell, electricity is to be available. These can be used with or without sun tracking. Sun tracking का आप इसमें यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. सन ट्रैकिंग का यूज करते हो तो ऑप्टिमाइज्ड यूटिलिटी ऑफ सनलाइट इंटेंसिटी होता है, जिससे स्वाभाविक है कि आपका परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी और पावर जनरेशन अधिक होता है. इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस ऑफ फोटोवोल्टाइक सोलर एनर्जी कन्वर्जन. मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज लेबर एंड एनर्जी इंटेंसिव. हाई कॉस्ट. इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है. द स्टोरेज बैटरीज आर नीडेड. ये मैंडेटरी ये नहीं है कि यदि आप बैटरी ऑनलाइन पावर को सप्लाई नहीं कर रहे हैं या ग्रिड में पावर नहीं दे रहे हैं तो उस वक्त यदि आपका आइसोलेटेड सिस्टम है तो बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है. सोलर पावर प्लांट्स रिक्वायर्स वेरी लार्ज लैंड एरियाज. इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको पैनल को इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत बड़े साइज में लैंड एरिया लगता है. इलेक्ट्रिकल जनरेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई. लेकिन अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होती चली जा रही हैं तो ये कॉस्ट भी अब काफ़ी कम हो चुकी है. द एनर्जी स्पेंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल इज़ वेरी हाई. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज़ वेरी हाई एंड स्टिल रिक्वायर्स ए लॉन्ग गैस्टिफिकेशन पीरियड. कहने का मतलब ये है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एडवांटेजेस की अपेक्षा थोड़े से कम हैं. तो ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये अल्टीमेटली काफ़ी एडवांटेजियस है, फ़ायदेमंद है.
यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें सिर्फ यही देखना था कि सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम क्या होता है। जो हमने अभी तक का स्टेटस था वो मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो सोलर में चल रही है, अब अपन उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इससे हमें ये पता रहता है कि नई नई चीज़ें अभी क्या आ रही हैं और भी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और इस सिस्टम को और अपग्रेड कर कितना लेवल तक हो गया है और कितने लेवल पे अपग्रेड करने की जो है इस समय प्रोसेस चल रही है। तो सोलर R&D में अपन पहले देखते हैं कि सोलर फोटोवोल्टाइक्स में द मिनिस्ट्रीज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इन सोलर photovoltaics being implemented at IIT Bombay and at the National Center for Photovoltaic Research and Education in phase 2 has several major areas. The progress made in each of these areas is briefly described below. क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की जब हम बात करते हैं, सिलिकॉन सोलर सेल्स की, for 6 inches into 6 inches in solar cells, Ni plating to be used as a barrier for Cu diffusion into Si. इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, बट स्टिल ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी रिसेंट में इतने सारे अपग्रेडेशन चल रहे हैं कि जिसको हमको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक मैं लेटेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ। विथ ऑल प्रोसेसेस कैरिड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैब, द चैम्पियन सेल ऑन मोनो SI वेफर्स हैड एन एफिशिएंसी ऑफ 19.4%। जो अभी हम देखे थे कि 11 से 12 जो मैक्सिमम परसेंटेज था एफिशिएंसी का, अब वो 19.4 तक पहुँच गया है। ओपन सर्किट वोल्टेज 634 मिलीवोल्ट्स, शॉर्ट सर्किट करंट 37.11 मिली एम्पियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और efforts are directed at reducing surface reflection through metal assisted chemical etching and additive-less alkaline texturing. Cell development saw further optimization of sprayed AI2O3 and joint development with industry a laser ablation process for dielectric films. इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, बट स्टिल ये एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन है कि अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे और भी काम हो रहा है डेवलपमेंट में सोलर सेल्स के लिए। ये for IBC solar cells, co-diffusion of B and P into silicon was studied with screen printed diffusion source for carrier selective contacts and improvement. इसमें efficiency और बढ़ जाती है आपकी 13.6% and active area efficiency 15.24 हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको ये पता चल रहा है कि अभी किस किस एरिया में हम काम कर रहे हैं और हमको काफ़ी कुछ उसमें फ़ायदा मिल रहा है। थिन फिल्म मटेरियल एंड डिवाइसेस, मल्टीकेशन पेरोविकाइड सोलर सेल्स in NIP and PIN configuration have fabricated efficiencies around 14.3% and 17% respectively. Screen printed carbon based solar cells, in order to reduce the cost and easiness in scaling up, have been fabricated by two-step drop cast method with efficiencies of around 13.5% on 0.09 centimeter square and 5.9% over 4 centimeter square device area. A mini module of 10 centimeter square with around 4 volt open circuit voltage has been fabricated by interconnecting 2 centimeter square solar cells in series. Basically यहाँ मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ कि अभी रिसेंट में
क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग सोलर सेल्स पर चला रहे हैं या चल रही हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी लेकिन कॉस्टिंग कम होगी। जहां एनर्जी स्टोरेज की बात आती है, मतलब बैटरीज की बात आती है, 20 Li ion cells of 2.5 ampere hour capacity with LCO graphite chemistry having life cycle of more than 100 cycle has been successfully demonstrated। यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज के लिए हम बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं। तो ये मैं एक बार पढ़ देता हूं पर along with a new chemistry CLTO/LFB have been under investigation for long cycle life. Also a prototype battery fabrication facility for demonstration of 7 ampere hour, 10 ampere hour stacked pouch cells, 2.5 ampere hour jelly rolled pouch cell and cylindrical cells have been established. The team has been also able to demonstrate an ultra high specific Na ion full cell with a doped ammonium vanadium oxide cathode against hydrogenated sodium titanium oxide. The cell is capable of retaining 94% capacity after 400 cycles. अब बाद में देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्थिति है अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में। द पावर सप्लाई पार्ट ऑफ ए हाई पावर इन्वर्टर टेस्टअप हैज बीन कंप्लीटेड। 5 prototype standalone 500 volt ampere inverter for rural off-grid applications have been fabricated and testing is carried out up to 125 power level। तो ये अभी रिसेंट स्थितियां हैं। 1 kVA inverter which can be operated in the presence or absence of grid is implemented and detailed report along with BOM submitted to MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है वो इसमें काफ़ी इन लोगों को अप्रिशिएट कर रही है और जो भी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है। ये बेसिकली विथ 82 HP BLDC motor which is driven from solar PV and it is used for surface mounted pumping application has been designed in house। A 5 kVA solar PV based inverter with integrated 2.5 kilowatt battery storage has been fabricated that can be operated in grid connected as well as in the standalone mode। standalone mode मतलब आपका ग्रिड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपने एक इंडिपेंडेंट सिस्टम लगा रखा है, उससे आप ये डायरेक्ट चला रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको एडिशनल बताई जो कि अभी इस वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत चल रहा है इन सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम के थ्रू जो आप ऑपरेट कर रहे हो इन सिस्टम्स में। तो वो बताना इसलिए ज़रूरी था कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमको सिर्फ बात करनी थी सोलर वोल्टाइक सिस्टम, लेकिन मैंने आपको उसके साथ साथ बहुत सारी वो चीज़ें बताई हैं जो कि अभी रिसेंट में इन पर काम हो रहा है और आने वाले समय में ये ज़रूर मार्केट में आ जाएंगी, जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो जाएगा और उसकी कॉस्टिंग जो है दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कन्वेंशनल सोर्सेस से ख़त्म हो जाएगी और हम बहुत कुछ जो है इस पर भी डिपेंड हो जाएंगे रिन्यूएबल पर। और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक बहुत ही रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जो है इसको अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए। अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो इसमें आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखा कि व्हाट एक्चुअली सोलर वोल्टाइक सिस्टम और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जानी है। तो मैं समझता हूँ इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको सोलर वोल्टाइक सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच।